Good morning. Let's share the screen. Firstly, let us just revise with the basic last lecture basic things, that is the takeaways from the earlier lecture what we had discussed. See, for solving the sum, you have to remember these four things. सबसे पहले जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस विल बी गिवन एंड दैट ट्रायल बैलेंस will be of the foreign branch which is situated in an other country. So that foreign branch currency will be different compared to ours, compared to the head office. So when the foreign branch submits its trial balance to us, the first thing we will do is we will prepare the converted trial balance. Now, conversion of the other currency into our own currency requires the exchange rate of each day, because the trial balance means the transactions for the whole year, but it is difficult for us to find out each and every day's exchange rate. It is like impossible. So what we do, we remember these four things which you all can see in your screen. Opening stock, which is there in the debit side of the trial balance, we convert with opening rate, and closing stock and other assets and liabilities, we use closing rate. For fixed asset, we use specific rate, and for all incomes and expenses, we use average rate. So this is what you all have to remember, so that we can convert our trial balance, which is given in the question, into the converted trial balance, the foreign branch trial balance. The trial balance which is submitted by the foreign branch to us will be in some other currency, not our currency. So first thing what we will do in each and every question is convert that foreign branch trial balance into our currency, convert it into our own currencies trial balance, because we cannot prepare accounts in two different currencies. It is not possible. We require one similar currency. So for that we will convert, and for converting we will keep into account, uh, 1 minute, if you cannot see, we will keep into account this rate: opening rate, closing rate, other assets and liability whose specific rate is not given, closing rate, fixed asset if its specific rate is given, specific rate, and for all incomes and expenses, average rate. Now, as you all know that your trial balance consists of income, expense, asset, liabilities. Debit side is for asset and expense, credit side is for liability and income. So accordingly, we will use these rates so that we can convert the trial balance into our own currencies, which is a foreign. At the year end, the foreign branches, what they do, they submit their accounts to the head office. Now the duty of the head office is to prepare the final accounts, but how to prepare the final accounts in some other currency? The first thing we will do is conversion, and conversion के लिए हम ये सारे rates ध्यान में रखेंगे. तो इसके बाद what now I will do is new share. Share. You all can see this. You can see this. You can see the PDF which I have shared. Yes, ma'am. Okay, thank you. See, let us discuss this sum now. The firm
Hardik and Company, with its head office in Bhopal, has a branch in Sydney. Now, where is the head office? The main branch is in Bhopal, and Bhopal falls in India. तो जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में है, एंड ब्रांच कहाँ पे है? सिडनी में. द ब्रांच इज इन सिडनी. एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इट इज December 31st, a trial balance is sent by the branch in Australian dollar currency. In Australian dollar currency is converted into rupees currency at the head office. So सिडनी ब्रांच क्या करेगा? सिडनी ब्रांच ईयर एंड में अपना ट्रायल बैलेंस, दे विल सेंड दैट ट्रायल बैलेंस टू द भोपाल हेड ऑफिस, to the Bhopal head office HO, and the duty of the HO starts now once it receives the trial balance sent by the branch. तो let us see the trial balance question. देखते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या है. द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर हैज बीन कंपाइल्ड एट द ब्रांच एज ऑन 31st December. नाउ यहाँ पे देखो, पर्टिकुलर्स डेबिट डॉलर्स, डेबिट ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स दिया है. ये जो ट्रायल बैलेंस है ये कौन से कंट्री के करेंसी में? ये ऑस्ट्रेलिया के करेंसी में है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है जहाँ पे हेड ऑफिस सिचुएटेड है उसमें. अभी देखो, ज़रूरी नहीं है, प्लीज म्यूट योर ऑडियो. इट इज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हेड ऑफिस इंडिया में ही हो, पर ये क्वेश्चन में हेड ऑफिस इंडिया में है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा इंडियन रुपीस में. उसके लिए सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल. क्या है बिल्स रिसीवेबल? असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है. व्हाट इज बिल रिसीवेबल? बिल्स रिसीवेबल इज अ असेट. तो इसके लिए असेट के लिए हम कौन सा रेट लेते हैं? असेट के लिए हम क्लोजिंग रेट लेते हैं. देखो, असेट हो, लाइबिलिटी हो, हम क्लोजिंग रेट लेते हैं. इनकम हो, एक्सपेंस हो, हम एवरेज रेट लेते हैं. और अगर कोई फिक्स सेट का अलग रेट दिया है तो हम वो रेट लेंगे उस फिक्स सेट के लिए. तो यहाँ पे देखो, बिल्स रिसीवेबल असेट है तो कौन सा रेट? क्लोजिंग रेट. डेटर्स असेट है तो कौन सा रेट? क्लोजिंग रेट. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, और असेट एंड लाइबिलिटी के लिए हम सेम रेट लेते हैं, दैट इज क्लोजिंग रेट. परचेज, परचेज क्या है? परचेज इज अ एक्सपेंस. और इनकम और एक्सपेंस के लिए हम क्या रेट लेते हैं? इनकम और एक्सपेंस के लिए हम एवरेज रेट लेते हैं. तो सेल्स, परचेज के बाद क्या है? सेल्स है. सेल्स क्या है? सेल्स इज अ इनकम, करेक्ट. यस. तो इनकम के लिए कौन सा रेट लेते हैं? एवरेज रेट. यस, करेक्ट. फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर इज अ असेट. अगर स्पेसिफिक रेट नहीं दिया, बिकॉज फर्नीचर एंड फिक्सचर इज अ फिक्स असेट, फिक्स असेट के लिए स्पेसिफिक रेट दिया रहना चाहिए. अगर नहीं दिया तो हम क्लोजिंग लेंगे, अगर दिया है तो वो रेट लेंगे. और ये जो स्टॉक है ये ईयर एंड है 31st December, और ये स्टॉक है 1st January का. मीन्स दिस इज ओपनिंग स्टॉक, एंड ओपनिंग स्टॉक मीन्स लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक. तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग रेट. लास्ट ईयर का क्लोजिंग रेट इस ईयर का हो जाता है ओपनिंग रेट. तो ओपनिंग स्टॉक को हमेशा हम किससे रहते हैं? ओपनिंग रेट से. क्वेश्चन में हमेशा ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट और एवरेज रेट दिया रहता है. तो हम लोग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को कौन से रेट से कन्वर्ट करेंगे? ओपनिंग रेट से. नेक्स्ट, establishment expense, नेम से it is suggested it is expense, and expenses के लिए हम एवरेज रेट लेते हैं. salaries also is a expense, expense means average rate. Rent, rates and taxes again is a expense, expense means average rate. Next one, sundry expense is also expense, expense means average rate. But depreciation on furniture, see depreciation on furniture normally हम क्या करते हैं? इसको हम लोग फर्नीचर के जो रेट होता है उससे ही कन्वर्ट करते हैं. लेकिन क्योंकि
ये यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया है। ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब इसको एक ही इफेक्ट होगा। एक ही इफेक्ट होगा मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर को हमें डायरेक्टली, अगर ये एडजस्टमेंट में आता है तो इसको असेट में से माइनस करके हम पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में आया है, इसको हम एक ही बार में कहाँ पे लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट पे। तो लेट अस टेक द एवरेज रेट। एक्सपेंस है ना ये, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो हम लोग वो वाला जो एक्सपेंसेस के लिए रेट लेते हैं वो लेंगे। नेक्स्ट वन, रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस। रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस मतलब हमने हेड ऑफिस को ये पैसा वापस किया है, इसका तो कन्वर्जन क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए। नेक्स्ट वन, head office account. This is what? This is the capital which has been invested by the head office in the branch. Normally क्या होता है, ये भी हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, ये हमें अलग से कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ये हमें डायरेक्टली हेड ऑफिस से रिलेटेड। रेमिटेंसेस बाय हेड ऑफिस मतलब क्या, ईयर एंड में कितना पैसा हमने रीपे किया, पे किया हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस के पास तो ये पैसा ऑलरेडी रुपीस में रहेगा, तो वो लोग को ये दिखाना चाहिए कि कितना है। ये हम कोई रेट इसमें यूज नहीं करेंगे, इसका कन्वर्टेड रेट हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। नेक्स्ट वन, हेड ऑफिस अकाउंट, ये क्या है, ये देखो इसका अमाउंट किधर है, इसका अमाउंट क्रेडिट साइड में 6920। तो इसके लिए ये क्या है, ये हेड ऑफिस ने जो कैपिटल हमें दिया है ब्रांच को, ये वो है। हेड ऑफिस ने जो कैपिटल दिया है, इसका कन्वर्जन हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, तो हमें इसका कन्वर्जन ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। इसके बाद वी हैव कैश ऑन हैंड एंड कैश एट बैंक। सो कैश ऑन हैंड एंड कैश एट बैंक तो असेट है, और असेट के लिए, असेट हो लाइबिलिटी हो, हम हमेशा क्लोजिंग रेट यूज करते। इसके बाद लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में व्हाट इज देयर, एडजस्टमेंट में द स्टॉक इन हैंड ऑन December 31st 2013 was $2,500। तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक डॉलर्स में दिया है, पर हेड ऑफिस तो इंडिया में है, इंडिया में है तो हमें ये भी रुपीस में चाहिए। हमें कन्वर्टर ट्रायल बैलेंस में तो ये नहीं आता, लेकिन फाइनल अकाउंट्स में तो हमें इसको रुपीस में लिखना है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक को हम हमेशा क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन में रेट्स दिया हुआ है, हमें कौन सा रेट दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे from 31st December 2012 to 30 June 2013 हमें ये जो रेट दिया है इसको हम ओपनिंग रेट मानेंगे, और 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का जो रेट दिया है इसे हम क्लोजिंग मानेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एवरेज रेट नहीं दिया, जब एवरेज रेट नहीं दिया रहता तो हम एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, ओपनिंग रेट डिवाइड बाय क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 34 प्लस 36 डिवाइड बाय 2। तो 34 और 36 दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज रेट आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द भोपाल बुक्स द बैलेंस ऑफ सिडनी ब्रांच अकाउंट एंड ऑफ द रेमिटेंसेस फ्रॉम सिडनी। सिडनी का ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट जो है ये क्या है, ये वो पैसा है जो ब्रांच में इन्वेस्ट किया है। तो हेड ऑफिस के बुक्स में नॉर्मली क्या है, हम क्या करते हैं, जिस बुक में है उसमें वो बुक का नाम नहीं, ऑपोजिट बुक का नाम लिखते हैं। अब सबने लेक्चर किया, अभी आप एमकॉम में हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम कभी भी लेक्चर में ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हैं। अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट में टू कैश, बाई कैश नहीं लिखते, जिससे कैश लिया, जिससे कैश मिला, हम उसका नाम लिखते हैं।
तो भोपाल बुक्स में जो भोपाल ने पैसा दिया है, तो भोपाल अकाउंट तो लिख नहीं सकते, उसने क्या लिखा है, सिडनी ब्रांच को। किसको पैसे दिया है? सिडनी ब्रांच को। और रेमिटेंसेस किससे आया है? हेड ऑफिस के बुक में सिडनी से रेमिटेंस आया, सिडनी से पैसा वापस आया है। तो वो कितना है? सिडनी ब्रांच अकाउंट का कन्वर्जन है 1,78,847 and the remittances is 37,068 rupees. So, and the original, I guess something is missing. The original furniture and fixture, I think क्वेश्चन में थोड़ा सा, हाँ दूसरे साइड में रहेगा। तो ये इसका जो है, ये एक और यहाँ पे देयर इज वन मोर पेज, तो वहाँ पे आते हैं। तो ओरिजिनल फर्नीचर एंड फिक्चर were bought when the rate of exchange was $1 equal to rupees 30। $1 कितना था? 30 रुपीज। तो ये तो स्पेसिफिक रेट दिया है फर्नीचर एंड फिक्चर के लिए। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर एंड फिक्चर के लिए हम 30 रुपीज जो दिया हुआ है वो यूज करेंगे। इसके बाद देखो इधर, ओपनिंग रेट कितना है? 34। क्लोजिंग रेट कितना है? 36। तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? अपना कैलसी निकालो, दोनों को ऐड करो, 36, 34 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 70, डिवाइड बाई 2 करो, कितना होता है? 35। 35। 35 ना। तो हमारा जो एवरेज रेट होगा, हमारा एवरेज रेट क्या रहेगा? अगर हमें देखना है तो यू ऑल कैन डू 1 मिनट। सबको मिला आंसर? 1 मिनट। हाँ, 70 आंसर, 35 मिला आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, आई वॉज वेटिंग फॉर, आई वॉज चेकिंग फॉर द वाइट बोर्ड बट वो विजिबल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन रीड करने के बाद हमारा पहला स्टेप होता है टू फाइंड आउट द कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। पहला स्टेप है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस निकालने का। तो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस के लिए ओल्ड और ट्रायल बैलेंस देखेंगे। हम क्या करते हैं, इसमें जो भी कुछ लिखा है सेम वे लिखेंगे। और ये तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये लोग ने आमने सामने लिखा है, फिर भी आप क्या लिखोगे यहाँ पे? हम डायरेक्टली, इन्होंने क्या किया है, पूरा ट्रायल बैलेंस लिखा है और उसके बाजू में डेबिट में कन्वर्टेड, डेबिट और क्रेडिट का रुपीस में कन्वर्शन दिया है। अगर आपको ये लेंदी लग रहा है, नहीं लिखना है, तो आप सिर्फ पर्टिकुलर्स लिखो, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2013। पर्टिकुलर्स लिखेंगे, रेट लिखेंगे, क्योंकि वो तो चाहिए कि कैसे कन्वर्ट किया। ये दो नहीं लिखना है तो मत लिखो, लेकिन क्या लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन। ये डॉलर किस में कन्वर्ट हो रहा है, हेड ऑफिस कौन से कंट्री में है? हेड ऑफिस इंडिया में है। तो कैसे कन्वर्ट होएगा? रुपीस में। तो डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, आप इतना भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स, रेट, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। अब यहाँ पे सम करते वक्त हमें अच्छा ऊपर जाके देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिया गया है बिल्स रिसीवेबल डॉलर्स में कितना था, 2500। अब 2500 डॉलर्स है, लेकिन हमें क्या मालूम है, हमें $1। अब बताओ, बिल्स रिसीवेबल इज असेट, तो असेट के लिए हम हमेशा कौन सा रेट लेते हैं? क्लोजिंग रेट लेते हैं। कौन सा रेट? क्लोजिंग रेट। तो क्लोजिंग रेट इज 36। तो बिल्स रिसीवेबल के लिए कौन सा रेट लिया है? 36 लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे
क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक मिनट, लेट मी गो टू द न्यू शेयर एंड फाइंड आउट वेयर इज दैट व्हाइट बोर्ड. इससे व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं दिख रहा? न्यू शेयर. आई कांट सी द व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन ही नहीं है इसमें. वन मिनट. मैं कुछ MS वर्ड ओपन करती हूँ. वन मिनट. हाँ, एवरीवन, वन मिनट. ये तुम लोग को लिख रहे, तुम लोग के काम का नहीं है. एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक पेज चाहिए था लिखने के लिए. देखो कितना है, $2,500 है. और हम लोग को इसका कन्वर्टेड रुपीस मालूम नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क है. पर $1 कितना है? आई थिंक आई हैव टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज. 2,500 कितना डॉलर है? डॉलर पता है 2,500, बट ये कितना रुपीस है ये हमें नहीं मालूम. हमें रुपीस में कन्वर्जन चाहिए, बट हमें ये पता है कि $1 जो है वो कितना रुपीस है. $1 इज 36. नाउ हमें कैसे इसका आंसर मिलेगा? यू ऑल कैन सी दिस ना? Yes. Yes, तो ma'am. 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 36, तो हमें कितना आंसर मिलता है? यहाँ पे हमें 90,000. आंसर 90. हर बार हमें क्या करना पड़ेगा? हर बार हर बार हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी डॉलर्स है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? क्लोजिंग रेट, ओपनिंग रेट या एवरेज रेट के जो वैल्यू दिया है उसके साथ. तो 36 इंटू 2,500 हमें आ गया. बिल्स रिसीवेबल इज 90,000. सेम वे डेटर्स असेट है. असेट के लिए भी हम क्लोजिंग रेट लेते हैं, और डेटर्स का वैल्यू दिया है 3,800. तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 3,800 करो. 36 इंटू 3,800, हमें One आंसर lakh आएगा 33. 1,36,800. सेम वे क्रेडिटर्स अगेन असेट रहने दो, लाइबिलिटी रहने दो, हमें क्लोजिंग रेट लेना पड़ेगा. तो क्रेडिटर्स है 36, मल्टीप्लाई करेंगे 1,100 से, तो आंसर आ रहे क्या? देखो 39,600 मुझे आ रहा है. तो इसके बाद नेक्स्ट है परचेसेस. परचेसेस इज इनकम है क्या एक्सपेंस? परचेसेस इज एक्सपेंस, और इनकम और एक्सपेंस दोनों के लिए हम एवरेज रेट लेते हैं. एवरेज रेट क्या है? 36 क्वेश्चन में नहीं दिया है पर हम निकाल सकते हैं. 36 जो क्लोजिंग रेट है प्लस ओपनिंग रेट है 34. तो 36 प्लस 34 दैट इज इक्वल टू 70, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 35. तो एवरेज रेट क्या है? 35. तो 35 इंटू परचेसेस का अमाउंट दिया है 13,500. तो 35 इंटू 13,500, आंसर कितना आ रहा है?
35 इंटू 13,500, आंसर आ रहा है मुझे 4,22,500। सेम वे सेल्स जो है उसका सेल्स का अमाउंट है सेल्स का अमाउंट है डॉलर्स में 22,800, और यहाँ पे हम सेल्स इनकम है और इनकम और एक्सपेंस के लिए हम एवरेज रेट लेते हैं। तो एवरेज रेट है 35। तो सेम वे 22,800 इंटू 35 किया, हमें आता है 7,98,000। इसके बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग। देखो फर्नीचर एंड फिटिंग के लिए दिया है $1 इक्वल टू 30। तो फर्नीचर एंड फिटिंग, अगर ये $1 इज इक्वल टू 30 नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या लेते, इन दैट सिचुएशन वी हैड टू टेक द क्लोजिंग रेट। व्हेन स्पेसिफिक रेट ऑफ असेट इज नॉट गिवन, वी टेक क्लोजिंग रेट। अगर स्पेसिफिक रेट दिया है तो वो रेट लेना है, नहीं दिया तो हमें क्लोजिंग रेट लेना है, क्योंकि फर्नीचर इज असेट और असेट के लिए हम क्लोजिंग रेट लेते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रेट दिया है तो वो रेट लेना है। सेम में देखो फर्नीचर एंड फिटिंग कितना है, 30 दिया है और उसका वैल्यू है 1340। मल्टीप्लाई करो, हमको आंसर आएगा 40,200। सेम वे ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट लेना है। ओपनिंग रेट कितना दिया है क्वेश्चन में, 34। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग रेट है 34 और ये है डॉलर में है 2000। तो 34 इंटू 2000 विच इज इक्वल टू 68,000। सेम वे इसके बाद दिया है स्टॉक के बाद दिया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब एवरेज रेट। एवरेज रेट कितना है, 35। तो 35 इंटू 2000 आंसर आएगा 70,000। सेम वे सैलरीज है, सैलरीज है 35 और 35 है सैलरीज। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टी, इसका डॉलर का वैल्यू दिया है 1,400, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 49,000। सेम वे रेंट रेट एंड टैक्सेस भी एक्सपेंस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, रेंट रेट एंड टैक्सेस है 400, ऊपर कितना अमाउंट दिया है 400, रेंट रेट एंड टैक्सेस इज 400 और यहाँ पे एवरेज रेट है 35। तो 35 इंटू 400 आंसर विल बी 14,000। सेम वे सन्ड्री एक्सपेंस ऑल्सो इज ए एक्सपेंस। तो 35 इंटू 1450 जो कि उसका डॉलर का वैल्यू है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50,750। सेम वे when we are talking about depreciation on furniture and fixture, they have given specific rate here. फर्नीचर एंड फिक्सचर का क्या स्पेसिफिक रेट दिया है, वो कितना है 30। तो 30 इंटू द वैल्यू विच इज गिवन 128, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3840। इसके बाद वी हैव रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस टू एचओ, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में कन्वर्जन दिया है दो चीजों का, रेमिटेंसेस टू एचओ मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितने पैसे पे किए, एंड इसके बाद हेड ऑफिस अकाउंट में, दैट इज हेड ऑफिस ने ब्रांच में कितने पैसे एज कैपिटल इन्वेस्ट किया, दोनों का कन्वर्जन क्वेश्चन में दिया हुआ है। 6920 का कन्वर्जन दिया है, दैट इज सिडनी ब्रांच अकाउंट। यहाँ हेड ऑफिस अकाउंट है पर ब्रांच के बुक में ऑपोजिट नाम दिया है सिडनी ब्रांच। हेड ऑफ ब्रांच के बुक में हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस के बुक में सिडनी ब्रांच अकाउंट। तो कितना अमाउंट दिया है, 1,78,847। 1,78,847 और रेमिटेंसेस का कितना है 1,502, दैट इज 37,060 दिया हुआ है दोनों का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जो वैल्यू दिया है वो लिखेंगे। देखो ये जो रेमिटेंसेस है ये मैंने किधर लिखा, डेबिट साइड में। क्यों, ट्रायल बैलेंस में देखो रेमिटेंसेस किधर है, डेबिट साइड में, बिकॉज ये पैसा वापस किया है रेमिटेंसेस। तो हमारा हमने वापस किया इधर है, और इसके बाद हेड ऑफिस जो है
ये किधर है, कैपिटल है, कैपिटल जो है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ क्रेडिट साइड में जो जो साइड ट्रायल बैलेंस के जो साइड में अमाउंट रहेगा, कन्वर्जन करने के बाद भी हमें उधर ही लिखना है। तो 1502 यहाँ पे था डेबिट में, तो हमने कन्वर्ट करके डेबिट में जो आंसर दिया है वो लिखा, और सेम वे क्रेडिट का भी क्रेडिट में लिखा। अब हमें क्या करना है, इसको टोटल करना है पूरा, एवरीथिंग इज ओवर। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, देखेंगे कि कौन सा साइड हैवी है। हम क्या करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड में 39,600 प्लस 7,98,000 प्लस 1,78,847, आंसर आता है 10,16,447। सेम वे हमें क्या करना है, डेबिट साइड में भी जो जो अमाउंट दिया है, दैट इज 90,000 प्लस 1,36,800 प्लस 4,72,500 प्लस 40,200 प्लस 68,000 प्लस 70,000 प्लस 49,000 प्लस 14,000 प्लस 50,750 प्लस 3840 प्लस 37,068 प्लस 28,800, सबको ऐड किया तो आया 10,60,958। Here I am simultaneously I have calculated because MCOM के टेक्स्ट बुक्स में मिस्टेक्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जब हमने ऐड किया तो हमें आंसर आया 10,60,958। आप लोगों को भी आया ये आंसर। अब देखा तो कौन सा साइड हैवी है, डेबिट साइड हैवी है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का जो टोटल है उसको क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस करेंगे, जो कि कितना है 10,16,447। तो हमें आंसर आता है 44,511। इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट डिफरेंस, डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज रेट डिफरेंस। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। पर कौन सा साइड में, डेबिट साइड या क्रेडिट, डिफरेंस कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। तो ये पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट या बाय एक्सचेंज रेट डिफरेंस। कितना अमाउंट है 44,511। तो इसके साथ हमारा कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त क्या करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट ब्रांच का इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट है, हम एक साथ भी बना सकते हैं, इन्होंने अलग अलग किया, हम एक साथ बना सकते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड। फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013, एक एक करके जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आता है, बिल्स रिसीवेबल आते हैं असेट साइड में। तो असेट साइड में जाके लिखेंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड में जाके लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 90,000। सेम वे बिल्स रिसीवेबल के बाद क्या है, डेटर्स, डेटर्स भी उधर ही असेट साइड में आते हैं। असेट साइड में डेटर्स लिखेंगे 1,36,800। इसके बाद डेटर्स के बाद क्या है, डेटर्स के बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किधर आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं लाइबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखा क्रेडिटर्स। इसके बाद क्रेडिटर्स के बाद क्या है, परचेसेस, परचेसेस भी है सेल्स भी है दोनों। देखो हम लोग कौन सा अमाउंट लिख रहे हैं, पहले तो हेड ऑफिस में हमने डॉलर्स के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट किया हेड ऑफिस के करेंसी में, क्योंकि ब्रांच क्या करती है, ईयर एंड में हेड ऑफिस को अकाउंट सबमिट करती है। तो हेड ऑफिस को मिला तो हेड ऑफिस ने पहले क्या किया, कन्वर्जन किया। अब कन्वर्जन करने के बाद क्या करेगी, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी। तो क्रेडिटर्स का कितना है
39,600, तो हमने डायरेक्टली लिखा, ये क्रेडिटर्स का हो गया ना, 39,600 लाइबिलिटी साइड में। इसके बाद परचेसेस यहाँ आएगा ओपनिंग स्टॉक के नीचे, टू परचेसेस 4,72,500। सेल्स कितना है, बाई सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 7,98,000। इसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग का 40,200 क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहाँ आएगा फर्नीचर, बैलेंस शीट में असेट साइड में। फर्नीचर के बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 68,000। ओपनिंग स्टॉक किधर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में, टू ओपनिंग स्टॉक 68,000। इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में आता है, तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे कितना है, 70,000। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस कितना है, 70,000। सैलरीज भी पीएनएल अकाउंट में आते हैं, कितना है, 49,000। तो टू सैलरीज 49,000, टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस 70,000। कोई ऑर्डर नहीं है, हाँ आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। जैसा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो, जो 11th स्टैंडर्ड में करते थे, उतना सिंपल है ये। सिर्फ कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते वक्त ध्यान में रखना है, ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग रेट, सारे असेट्स लाइबिलिटी के लिए क्लोजिंग रेट। अगर कोई असेट का स्पेसिफिक रेट दिया है तो वो रेट, और इनकम और एक्सपेंसेस के लिए एवरेज रेट। इसके बाद देखो रेंट एंड रेट्स के बाद सन्ड्री एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंस कितना है, 50,750। फिर सन्ड्री एक्सपेंस के बाद डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कहाँ पे है, देखो डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में एक ही इफेक्ट होता है। तो हमने कहाँ लिखा, डेप्रीसिएशन को हमने लिखा पीएनएल अकाउंट में। और देखो क्योंकि ना स्पेसिफिक रेट फर्नीचर का दिया है, नॉर्मली हम डेप्रीसिएशन में एवरेज रेट लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि फर्नीचर एंड फिक्सचर का ऑलरेडी एक स्पेसिफिक रेट दिया है, तो वही रेट का हम लोग, अगर परसेंटेज में दिया होता तो वही रेट का हम परसेंटेज निकालते। तो ये जो डेप्रीसिएशन भी निकलेगा, ये वो अमाउंट से रिलेटेड होगा, इसलिए हमने डेप्रीसिएशन भी क्या किया है, ये जो 128 है, ये किसका 128 रहेगा, जो डॉलर्स में 128 डॉलर्स है डेप्रिसिएशन का, ये 1340 का ही कोई परसेंटेज होगा। तो जो इसमें जो रेट से कन्वर्ट किया है, इवन ये डेप्रिसिएशन को भी हमें वही रेट से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, हमारा ये दोनों, मतलब ये जो डॉलर्स का जो रिलेशन है, वही रिलेशन रुपीस में भी आएगा। इसीलिए जो हम इसको हमने 30 से कन्वर्ट किया, तो ये 128 को भी उसी से कन्वर्ट करेंगे तो ही राइट आंसर आएगा, नहीं तो राइट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक रेट दिया है। इसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद क्या है, रेमिटेंस टू एचओ। रेमिटेंस टू एचओ का तो कन्वर्टेड रेट ऑलरेडी गिवन है। रेमिटेंस टू एचओ क्या करेंगे, हमारा लाइबिलिटी साइड में कैपिटल इतना है, इसमें से ये पूरा कैपिटल तो एचओ ने लिया नहीं, पर हमने एचओ को पूरे साल का प्रॉफिट सबमिट किया है। पूरे साल का एक्चुअली ये प्रॉफिट भी नहीं है, पर सब यहाँ पे देखो मिस्टेक है, ध्यान में रखो। यही मैं बोल रही थी, एमकॉम के टेक्स्ट बुक में बहुत मिस्टेक रहता है। कितना है, 37,068। और यहाँ पे देखो उन लोग ने क्या लिया है, 37,000, ये तो कुछ और, 3,70,698। दिस इज नथिंग बट दिस इज अ टाइपिंग एरर। तो यहाँ पे आप क्या, आप इसको फेयर करोगे, आपके लिए होमवर्क क्या है, आप ये सम को फेयर करोगे, और फेयर करते वक्त ये जो मिस्टेक है ये भी फिर रेक्टिफाई हो जाएगा। देखो हम लोग, दिस इज द नीड फॉर द आवर, वी आर सॉल्विंग इट दिस वे, नहीं तो ये बोर्ड में सॉल्व करना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक हमें ये सब करना पड़ रहा है। सी हियर 37,060 कितना है, 69 है ना, सॉरी 68 है। तो ये ही यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मिस्टेक है, इधर इधर ये लोग ने मिस्टेक किया है। इसके बाद हेड ऑफिस अकाउंट कितना है, 1,07,000। हेड ऑफिस अकाउंट इज नथिंग बट द कैपिटल, और कैपिटल किधर आता है, लाइबिलिटी साइड में। तो एचओ में कैपिटल का अमाउंट, कन्वर्टेड अमाउंट जो दिया है वो हमने लिखा। ये दोनों को ऐड करने के बाद, कभी भी देखो ये दोनों को ऐड करो, देखो ऐड करेंगे तो 178,847
प्लस, सॉरी प्लस नहीं, रेमिटेंसेस है ना, माइनस 37,068। आंसर जो नीचे लिखा है वो करेक्ट आंसर है, वो मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। 1 लाख, जब हम लोग 1,78,847 से 37,068 माइनस करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1,41,779। तो ये होने के बाद लेट अस अगेन गो टू द ट्रायल बैलेंस। हेड ऑफिस के बाद क्या है, कैश ऑन हैंड एट बैंक, इसका कन्वर्जन कितना है 28,800। तो कैश एट बैंक किधर आता है, ये तो असेट साइड में आता है, कैश एट बैंक ये कितना हो गया 28,800। अब हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं, कोई एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट एक ही है, वो है स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2013। ये कितना है 2500, 2500 इंटू व्हाट इज द क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक है ना ये जो एडजस्टमेंट में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक को इंटू 36 करना पड़ेगा। 2500 इंटू 36 करते हैं ना तो आंसर आता है 90,000। देखो तुम लोग को भी मल्टीप्लाई करने पे 2500 इंटू 36 जब हम करते हैं तो 90,000 आएगा। तो ये 90,000 पहले तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 2500 इंटू 36, 36 क्लोजिंग रेट है और क्लोजिंग स्टॉक को हम कन्वर्ट क्लोजिंग रेट से करते हैं। 2500 इंटू 36 आंसर आता है 90,000। क्लोजिंग स्टॉक एक और जगह में आता है, एडजस्टमेंट है मिनिमम टू इफेक्ट, तो कहाँ पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा 90,000। सारा पोस्टिंग हो गया, अब क्या करना है हमें, ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करना है। तो देखते, क्रेडिट साइड हैवी है, ग्रॉस प्रॉफिट आया 3,47,500। ये ग्रॉस प्रॉफिट को 2 GP कैरीड डाउन, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट 2 का यहाँ पे हो जाएगा बाई, ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन। और एक चीज हम लोग भूल गए, देखो यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस में एक्सचेंज रेट डिफरेंस है, ये कहाँ पे आता है पीएनएल अकाउंट में, पर ये कौन से साइड में, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में है। तो इधर लिखेंगे बाय एक्सचेंज रेट डिफरेंस कितना 44,511, ये हमने लिख दिया। इसके बाद भूलना नहीं है, कैश बैंक के बाद हमें क्या पोस्टिंग करना है, एक्सचेंज रेट डिफरेंस का। फिर हमने क्लोज, वैसे तो अभी भी ठीक है लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और नेट प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, कैपिटल में से नेट प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल में रेमिटेंसेस माइनस कर दिया। रेमिटेंसेस जो है देखो किधर था, वो रेमिटेंसेस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में था, तो लाइबिलिटी में से माइनस करना पड़ेगा। इतना पैसा हमने हेड ऑफिस को वापस कर दिया। इसके बाद 1,41,779 में हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट जो कि हमें मिला है 2,04,421, ये ऐड करेंगे और बाहर के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये बैलेंस शीट को टैली करेंगे, तो ये टैली होना चाहिए, और टैली अमाउंट कितना है 3,85,800, दिस इज द टैली अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, ये जो सम हम लोग ने अभी सॉल्व किया, इसको आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग को मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में ये